Good morning, 7th standard. Welcome back to English class. Today we are going to do Unit 6 from your English textbook, Exploring Patriotism. When we talk about patriotism, first let us know what is the meaning of patriotism. See, I've written over here, patriotism means showing loyalty towards one's nation. हमारी लॉयल्टी हमारी कंट्री की तरफ, हमारा प्यार हमारी कंट्री की तरफ, हम जो अपनी कंट्री के लिए इज्जत दिखाते हैं, हमारा रिस्पेक्ट, राइट, अपनी कंट्री की तरफ, ये सारी चीज़ें पेट्रियोटिज्म में आती है। अब पेट्रियोटिज्म की बात करें उससे पहले हम बात करते हैं हमारी कंट्री के फ्रीडम की। We all have studied even in SS that हमारी कंट्री को फ्रीडम मिला in 1947, right? And our constitution came into force in 1950. 1947 से पहले हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे. That means we lived the life of slaves, right? और हमें फ्रीडम दिलवाने के लिए, the freedom which we are enjoying today, right? Our country is free, right? तो वो फ्रीडम के लिए, हम सब को फ्रीडम दिलवाने के लिए, there were many people who gave up their lives and we remember them as freedom fighters and leaders, right? और वो फ्रीडम फाइटर्स और लीडर्स का हम डे सेलिब्रेट करते हैं, right? We celebrate days of our freedom fighters, we celebrate days of our leaders. We celebrate 2 national festivals also, and that 2 national festivals are Independence Day and Republic Day. Have you ever noticed that on Independence Day and Republic Day हमारी जो feeling होती है ना, वो अलग ही होती है. Have you ever experienced that? मतलब उस समय क्योंकि सब जगह एवरीवेयर हम लोग है ना, हमारा नेशनल एंथम सुनते हैं, नेशनल सॉन्ग सुन रहे होते हैं, वी सल्यूट आवर नेशनल फ्लैग, राइट? वो जो फीलिंग होती है, हम जब स्कूल भी जाते हैं तो स्कूल में जो फ्लैग होस्टिंग होती है, जो प्रोग्राम होता है, राइट? सो ऐसा लग रहा होता है कि वी आर हम कनेक्ट हो रहे हैं हमारी कंट्री से. पर ये जो कनेक्शन है ना, ये जो इंटीमेसी है, सिर्फ ये 2 डेज ही नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे पे ही नहीं होनी चाहिए. वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड रिस्पेक्ट आवर कंट्री, राइट? क्योंकि अगर हम अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट और लव करेंगे तो एवरीबडी विल रिस्पेक्ट एंड लव आवर कंट्री, राइट? क्योंकि जो फ्रीडम फाइटर्स, जो लीडर्स, जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी ये फ्रीडम दिलवाने के लिए हमें, they knew that if they fight for the freedom they are not going to live, they knew they are going to die, but they all died for whom? They all died for us, right? So ये जो patriotism की जो feeling होती है ना, ये बहुत ही छोटी सी feeling नहीं है, ये बहुत बड़ी feeling है, बहुत elaborate है, बहुत deep है. patriotism का मतलब बहुत ज़्यादा deep है, right? तो इसी पेट्रियोटिज्म की फीलिंग के साथ आज हम ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, लेट अस रिमेंबर ऑल द फ्रीडम फाइटर्स एंड ऑल द लीडर्स, है ना? और एक्टिविटी 1 जो है, राइट, दिस एक्टिविटी 1, इट इज अ वंडरफुल एक्टिविटी. देखो ये पूरा ट्री है एक्टिविटी 1 का. अब इन दिस एक्टिविटी 1 इफ यू एक्चुअली properly just see this activity, इस ट्री को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो you observe that there are many faces, right? अब let us first see how many faces are there. I have highlighted and I have numbered also, right? और वो
किस किस के फेसेस है, राइट? So let us, I'll just see, if you see the number 1, I've written the number and I've highlighted the number, right? Whose picture is this? Mahatma Gandhi. We are going to study about him today, right? Second is Abdul Ghaffar Khan. Second. Third, if you go to see, whose picture is this? Bal Gangadhar Tilak. Fourth, Subhash Chandra Bose. Fifth, Jawaharlal Nehru. Sixth, Lal Bahadur Shastri. Seventh, Bhagat Singh. Eighth, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Ninth, Rajiv Gandhi. And 10th, Indira Gandhi. Right? कितना beautiful बनाया है ना? Right? Wonderful. I've written also, that means how many faces do you find in this picture? 10 faces. Can you identify them? Yes, I've written all the names. Okay. So now let us move towards activity 2. As I told you right now, that today we are going to study about Mahatma Gandhi. Activity 2, the making of Mahatma. अब यहाँ पर महात्मा, यहाँ पर उस पर्सन की बात कर रहे हैं जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी. अब मोहनदास करमचंद गांधी से वो महात्मा गांधी क्यों कहलाए? Why did people start calling him Mahatma? Right? Why was he given this title? Because of his deeds. उन्होंने जो काम किए, right? He did not do work for name and fame. नहीं, उन्होंने जो भी काम किया बहुत डेडिकेशन से किया, है ना? सच्चाई से किया, डेडिकेशन से किया, right? So let us read about him. We all of us know that Gandhiji, he had gone to South Africa to finish his studies, to finish his graduation, है ना? And at that time also South Africa, वहाँ पर South Africa के जो लोग थे, they were also dependent, मतलब उन लोगों को भी freedom नहीं मिला था. They were also like slaves. They were living the life of a slavery, right? तो वहाँ पर देखते हैं कि गांधी जी ने क्या किया. इतनी डिटेल में तो इधर नहीं बताया है. We have already studied in SS, right? So let us read what it is talking about Gandhi ji. Gandhi ji became associated with the social life of Indians in South Africa since his arrival there in 1893. In 1893, Gandhi ji South Africa गए. And then he connected himself, he got connected with all these Indians, and he got connected, he was associated with the social life of Indians over there. Can anyone act against one's own nature or escape being a plaything in the hands of fate? हम क्या हमारा जो नेचर होता है उससे हम अलग कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं ना, है ना? जिसका जो नेचर होता है वो करता है, राइट? और क्या हमारी फेथ में कुछ लिखा हुआ है, हमारी डेस्टिनी में कुछ लिखा हुआ है, उससे हम एस्केप कर सकते हैं? नहीं, उससे भी हम एस्केप नहीं कर सकते हैं. लेट अस सी ये क्यों पूछा है. Gandhi ji had gone to Africa with professional motives, but as must have been the design of destiny, his 21-year stay in South Africa became the preparatory period that equipped him with the perseverance and moral strength to emancipate society from the forces of untruth and violence with the spiritual antidote of truth and non-violence.
अब यहाँ पर जो पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, हमारी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ होता है उसको हम एस्केप नहीं कर सकते, राइट। हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हमारी डेस्टिनी में अगर कुछ लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पर उसको किस तरह रिलेट किया है कि देखो, गांधी जी एक्चुअली अफ्रीका क्यों गए थे? अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, प्रोफेशनल मोटिव्स के लिए गए थे, राइट। बट उनको ये नहीं पता था कि डेस्टिनी हैज समथिंग एल्स इन स्टोर फॉर हिम, राइट। उधर कुछ और ही डिजाइन बनी हुई है उनकी डेस्टिनी की। अब जितने भी साल वो वहां पर रहे, he stayed over there for 21 years, right? अब वो 21 years जो वो अफ्रीका में रहे, तो वहां पर स्लोली और ग्रेजुअली वो क्या होते जा रहे थे, क्योंकि डेस्टिनी ने उनके लिए कुछ और ही प्रिपेयर किया हुआ था। डेस्टिनी ने उनके लिए क्या प्रिपरेशन की हुई थी कि हमारी कंट्री में आकर, राइट, ही वॉज द बेस ऑफ एवरीथिंग, राइट। ही वॉज द वन हु टोल्ड दैट हमें वायलेंस नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, और हमें फ्रीडम लेना है, राइट। ही वॉज द वन, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है, वी नो द हिस्ट्री, राइट। लेकिन ये डेस्टिनी, ये जो उनको करना था, उसकी प्रिपरेशन वो देखो कहाँ से स्टार्ट करके आ रहे थे, अफ्रीका से। वो गए तो पढ़ने के लिए थे, पर शायद डेस्टिनी को ये था, उनकी डिज़ाइन वहाँ बनती जा रही थी, दैट उनको प्रिपेयर करते जा रहे थे, राइट। उनको किस चीज़ की प्रिपरेशन मिलती जा रही थी? he was being prepared and he was equipped, right। उनको क्या होता जा रहा था, वो अपने आप को प्रिपेयर करते जा रहे थे। equipped मतलब he was preparing himself with all the necessary things, right। अब preparatory का मतलब होता है to do something, to do, to prepare yourself for something, right। अब उनको पता नहीं कि वो किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और he was being prepared for necessary things। और वो necessary things क्या थी? उनके साथ साथ उनको क्या आता जा रहा था? he was with the perseverance and moral strength। और उनको perseverance का मतलब क्या होता है? the quality to continue to try to achieve a particular aim, right। वो अपने आप को कोई हर एक गोल, जो एम उन्होंने बनाया है, उसको जीतने का, राइट। मॉरल स्ट्रेंथ, उनको एक मॉरल स्ट्रेंथ भी जो है, वो अपने आप को मॉरल स्ट्रेंथ के साथ भी, मतलब कह सकते हैं कि उनमें मॉरल स्ट्रेंथ भी बढ़ता जा रहा था, राइट। और टू एमिनिसिपेट सोसाइटी, एमिनिसिपेट का मतलब क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन से, मतलब सोसाइटी में जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसको फ्री करना। एमनेस्टमेंट का मतलब होता है टू फ्री, राइट। तो सोसाइटी को वो किस चीज से फ्री कर रहे थे, हम आगे पढ़ेंगे। ही वॉज एमनेसिपेटिंग सोसाइटी, वो सोसाइटी को फ्री कर रहे थे किस चीज से? फोर्सेस ऑफ अनट्रुथ एंड वायलेंस, राइट। झूठ से, वायलेंस से। और ऐसे लग रहा था कि वो अपना कुछ स्पिरिचुअल एंटीडोट देते जाते थे, और वो स्पिरिचुअल एंटीडोट क्या देते थे? सच और नॉन वायलेंस, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो ऐसा लग रहा था कि साउथ इंडिया में वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, किस चीज़ का उनको परसिवरेंस और मॉरल स्ट्रेंथ, किस चीज़ का वो मिल रहा था? वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, और वो सोसाइटी को किस चीज़ से हटा रहे थे? अनट्रुथ और वायलेंस से हटा रहे थे। सोसाइटी को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कोई भी चीज़ जो है जीती नहीं जा सकती झूठ से, कोई भी चीज़ जीती नहीं जा सकती हिंसा से, राइट। और वो स्पिरिचुअल एंटीडोट किस चीज का दे रहे थे? सच्चाई का, अहिंसा का, नॉन वायलेंस और ट्रुथ का। इट वॉज अ लाइफ ऑफ प्योर डेडिकेशन। और उनको वो पूरी, ऐसे लग रहा था उनकी लाइफ जो है प्योर डेडिकेशन की प्योर लाइफ थी। डेडिकेशन मतलब कमिटमेंट की,
उन्होंने वो पूरा जो भी काम जो था, मतलब लोगों को बताना कि सच्चाई और नॉन वायलेंस की बातें बताना, स्पिरिचुअल एंटीडोट देना ट्रुथ और नॉन वायलेंस का, it seems like he was committed to that. For not once in 21 years did he ever project himself as one who was after fame or asserting himself as a author of events. अब वो इतना सारा काम सोसाइटी में कर रहे थे, पूरे 21 years जितना टाइम वो अफ्रीका में रहे, उन्होंने प्योर कमिटमेंट से, प्योर डेडिकेशन से काम किया साउथ अफ्रीका में। लेकिन एक भी बार उन्हें ऐसा नहीं लगा कि आई शुड डू समथिंग फॉर नेम एंड फेम। आजकल हम कुछ भी करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, मेरा तो नेम होना चाहिए, मैं फेमस होना चाहिए, पीपल शुड नो व्हाट आई हैव डन, पीपल शुड प्रेज मी फॉर व्हाट आई हैव डन, तो ही हम काम करते हैं, है ना। अगर वो नहीं होता तो हम नहीं करते हैं, राइट। सो ही डिड नॉट थिंक इवन वंस, एक बार भी उन्होंने 21 ईयर्स में कभी नहीं सोचा कि मुझे फेम मिलना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, नहीं। ही नेवर थॉट ऑफ कि पीपल शुड नो कि दीज आर द थिंग्स विच आई एम स्टार्टिंग और आई एम डूइंग इट। दैट इज वाई महात्मा ऐसे ही कोई नहीं बनता, है ना, राइट। तो जब महात्मा बनना होता है तो हमें ग्रेट डीड्स करनी पड़ती हैं, और वो ग्रेट डीड्स कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, सेल्फलेस। सेल्फलेस मतलब कोई भी सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए, है ना। हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में ही सोचना नहीं चाहिए। जो भी काम करें हम सबके लिए करें, तो ही महात्मा वाला टाइटल मिल सकता है। So this is, that is the title appropriate है ना, the making of Mahatma, and how this मोहनदास करमचंद गांधी वो महात्मा की तरफ कन्वर्ट होने लग गए। अब ऐसा ही एक और उनके बारे में एक स्टोरी है, राइट। उनकी एक बुक है, I hope you have read. If you have not, please read this book. It is a very good book. My Experiments with Truth. It is written by गांधी जी, है ना। और उसी का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, उनकी बुक में से ही है, और उनको इन्होंने टाइटल दिया है अनवेलकम विजिटर। अब लेट अस रीड उसमें क्या बता रहे हैं। द पोर्ट ऑफ नाटल is called Durban and also as Port Natal. अब ये साउथ अफ्रीका में जब वो पहुंचे, राइट, तो वहाँ पर डर्बन में, राइट, पोर्ट ऑफ नाटल में वहाँ गए, और वहाँ पर उनको रिसीव करने कौन आया, जब हम जाते हैं तो कोई हमें रिसीव करने आते हैं, अब्दुल्ला शेठ, ठीक है। अब्दुल्ला शेठ हैड कम टू रिसीव मी, मतलब अब्दुल्ला शेठ केम टू रिसीव गांधी जी। As the ship reached the quay and the people of Natal came on board to meet their friends, I realized that Indians were not quite respected there. अब यहाँ पर गांधी जी बोल रहे हैं कि जैसे ही शिप जो है पोर्ट पर पहुंचा, राइट, और जो लोग थे, पीपल ऑफ नाटल जो थे, जो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, जो भी हो, उनको जब वो लोग लेने आए थे, तो उन्होंने रियलाइज किया कि वहाँ पर इंडियंस को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। उन्होंने जो लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व किया, राइट, व्हेन ही रीच्ड ओवर देयर, दैट मींस आप देखो ही वाज सो इंटेलिजेंट, सो वाइज। सो व्हेन ही रीच्ड ओवर देयर एंड ही रियलाइज्ड लोगों का जो बिहेवियर था, तो उनको एक जजमेंट आ रहा था कि यहाँ पर इंडियंस को इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। I noticed a kind of rudeness in the behavior of the people who knew Abdullah Sheikh. और फिर उन्होंने ये भी नोटिस किया कि वहाँ पर लोग जो, मतलब जो लोग अब्दुल्ला शेख को पहचानते थे, उनका बिहेवियर अब्दुल्ला शेख की तरफ थोड़ा रूड था। दैट ऑल्सो शोड कि द इंडियंस वर नॉट लाइक्ड ओवर देयर। इट हर्ट मी, यहाँ पर गांधी जी बोल रहे हैं कि उन्हें बहुत दुख हुआ। He took me home and gave me the room next to his. अब अब्दुल्ला शेख गांधी जी को अपने घर लेकर गए और उन्होंने एक कमरा गांधी जी को दिया।
Abdullah Sheikh's literacy level was low, but his knowledge through experience was immense. अब्दुल्ला शेख जो थे उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब ही वॉज नॉट सो एजुकेटेड, बट हिज नॉलेज वॉज वेरी गुड, राइट. नॉलेज थ्रू हिज एक्सपीरियंस, मतलब उन्होंने उनका जो एक्सपीरियंस था लाइफ का, राइट, वो बहुत ज़्यादा था और वो नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, है ना. दैट मीन्स ही वॉज एन वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन. ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जो पढ़े लिखे होते हैं वही नॉलेजेबल होते हैं. देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ एजुकेशन एंड नॉलेज, है ना. फिर नॉलेज और विजडम बहुत डिफरेंस होता है. हम गुजराती में ऐसा मतलब कहावत है, जरूरी नहीं कि जे भणेला होए घणेलापण होए, राइट. तो जो जैसे फॉर एग्जांपल हम कई बार देखते हैं कि हमसे जो बड़े हैं, राइट, तो हम सोचते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं चलता. आज मैंने देखा है ऐसे बच्चे जो होते हैं, दे फील यू नो कि देयर पेरेंट्स आर नॉट सो एजुकेटेड, दे डोंट नो, वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड. दे मस्ट बी नॉट एजुकेटेड, बट दे आर मोर understanding, they are more experienced than you, right, they are more wise than you, right. उनके पास बहुत wisdom है, बहुत knowledge है. तो अब्दुल्ला शेख भी मे बी उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं थी, he was not so educated, but his knowledge was very good because that knowledge was through his experience, है ना. he had a sharp intellect, मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट थे, sharp intellect he had and was conscious of it. He had learned sufficient English for conversation through practice. और वो इंटेलिजेंस जो थी उनको, वो बहुत कॉन्शियस थे, मतलब ही न्यू व्हाट ही इज डूइंग, राइट. और उनको इतनी तो इंग्लिश आती थी कि वो कॉन्वर्जेशन कर सके. He managed all his work with that kind of English. He was proud of Islam. अब बीइंग इन अ फॉरेन कंट्री, उनको इतनी तो इंग्लिश आती थी कि वो अपना काम मैनेज कर सकें, अपना काम करवा सकें. And he was proud of Islam because he was Islamic. He was fond of discussing philosophy. Philosophy is like, you know, philosophy वो चीज़ें होती हैं जब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकली चीज़ें क्या हो रही हैं, किस तरह हो रही हैं, राइट. मतलब यू नो प्रैक्टिकली लाइफ क्या है. तो वो he was very fond of discussing philosophy. On the second or third day, he took me to see the court of Durban. He made me sit next to his lawyer in the court. अब वहां पर गांधी जी तो पढ़ने गए थे, राइट. तो सेकंड थर्ड डे अब्दुल जो थे, उन्होंने अब्दुल शेख जो थे, ही टुक गांधी जी टू द कोर्ट ऑफ डर्बन और उनको अपने लॉयर के पास में बिठाया. The magistrate kept looking at me. He asked me to take off my turban. I refused to take it off and left the court. अब जब वहाँ पर मैजिस्ट्रेट आए और उन्होंने गांधी जी को देखा, तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, राइट, गांधी जी इज वेयरिंग अ टर्बन, पगड़ी पहने हुए हैं, है ना. तो मैजिस्ट्रेट ने बोला कि आप अपना ये टर्बन उतार दो, क्योंकि वो इंग्लिश कोर्ट में बैठे थे, अफ्रीका के कोर्ट में बैठे थे, है ना. अब वहाँ पर क्या था, वो टर्बन उठाकर वो जो उधर की जो कैप होगी वो पहननी पड़ेगी, है ना. तो उन्होंने उनको बोला कि आप ये टर्बन उतार दो. तो व्हाट डिड गांधी जी से, ही रिफ्यूज्ड, मतलब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपना टर्बन उतारूंगा नहीं. एंड ही लेफ्ट द कोर्ट. एज माई लक वुड हैव इट, देयर वाज अ बैटल हियर एज वेल. और फिर वहाँ पर लड़ाई हो गई. ऑब्वियस है, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री में आ गए हो और फिर अगर हम रूल्स उनके फॉलो नहीं कर रहे और हम बोले नहीं हम अपना ही टर्बन पहनेंगे, राइट, वी आर नॉट गोइंग टू वेयर दैट, तो थोड़ा फाइट हो गया. अब आगे देखते हैं. अब्दुल्ला शेख डिड नॉट लाइक दैट सजेशन, और अब्दुल्ला शेख को भी वो सजेशन अच्छा नहीं लगा. कौन सा सजेशन, मैजिस्ट्रेट टेलिंग गांधी जी कि आप अपना टर्बन उतार दो. तो अब्दुल्ला शेख भी नहीं चाहते थे कि गांधी जी अपना टर्बन उतार दे. He said, if you make that change now, it will be misunderstood.
Those who want to wear the turban of their country will have a hard time. तो अब्दुल्ला शेख ने गांधी जी को एक एडवाइस दिया, बोला कि अगर आज आप टर्बन अपनी कंट्री का उतार दोगे तो यू विल बी मिसअंडरस्टूड बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री. इंडियंस लोग या दूसरी कंट्री के जो लोग यहाँ पर हैं, राइट, वो आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे और शायद हो सकता है कि फिर कोई भी अपनी कंट्री का टर्बन पहन नहीं सकता है, राइट. जैसे अभी यहाँ पर ये देखो, उनको इस्लाम का कैप पहना हुआ है, इधर टर्बन पहना हुआ है. अगर रिस्ट्रिक्शंस आ जाए कि नहीं हम ये टर्बन नहीं पहन सकते, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि पगड़ी, ऐसा हम मानते हैं कि ये जो हम टर्बन पहने हुए हैं, ये जो पगड़ी है, ये हमारी रिस्पेक्ट है ना. तो इट माइट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ मैनी पीपल. तो अब्दुल शेख ने गांधी जी को बोला, Those who want to wear the turban of their country will have a hard time. फिर दूसरों के लिए भी टर्बन पहनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. Moreover, you look elegant with the turban of our country. और फिर उन्होंने गांधी जी को बोला, आपको जो टर्बन पहना हुआ है वो अपनी कंट्री का टर्बन है, हमारी कंट्री इंडिया का टर्बन है. एंड यू लुक वेरी एलिगेंट इन दैट. यू लुक लाइक अ वेटर इफ यू वेयर एन इंग्लिश कैप. और अगर ये अपनी कंट्री का, इंडिया का टर्बन अगर आपने उतार दिया और इंग्लिश कैप पहना, तो शायद आप वेटर की तरह लगोगे. दैट मीन्स कि वो बात में अब्दुल शेख ये बताने की ही वॉज हैप्पी दैट गांधी जी ने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने वर्ड्स में गांधी जी को बहुत क्लियरली बता दिया कि जो आपने टर्बन पहना हुआ है अपनी कंट्री का, वो ही सही है और इंग्लिश कैप पहननी नहीं है. Those words had worldly wisdom, also patriotism. गांधी जी को उनके वर्ड्स कैसे लगे? वर्ल्डली विजडम. वर्ल्डली विजडम यानी क्या हो जाता है? वो दुनियादारी की बातें होती है ना, वैसे. और इवन पेट्रियोटिज्म. अब ये देखो, अब्दुल्ला शेख की बातों से क्या लग रहा है? उनकी पेट्रियोटिज्म पता चल रही है, लव फॉर हिज कंट्री, लॉयल्टी फॉर हिज कंट्री, है ना, वो भी दिख रहा था गांधी जी को. टू एन एक्सटेंट अ लिटिल कॉन्वर्जेशन टू. I wrote a letter to a newspaper about the incident in defense of me and the turban. अब गांधी जी ने क्या किया? न्यूज़पेपर में अपना एक लेटर लिखा, ये लिखा कि मुझे बोला जा रहा था कि मतलब टर्बन उतारने के लिए, और इसके कारण थोड़ी फाइट भी हो गई थी थोड़ा, है ना. तो उन्होंने अपना ये टर्बन वाला इंसिडेंट जो है वो लेटर में लिखकर न्यूज़पेपर में मतलब छपने के लिए भेज दिया. My turban was extensively discussed in the newspaper. और वो जो टर्बन वाला पूरा जो इंसिडेंट था हर एक न्यूज़पेपर में छपा और बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ. मीडिया, है ना, बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है ना. I hit the headlines as unwelcome visitor. और वो हेडलाइन किस तरह छपा? अनवेलकम विजिटर. विजिटर जिसको वेलकम नहीं किया, अनवेलकम विजिटर की तरह, उस तरह की हेडलाइंस डालकर गांधी जी का ये आर्टिकल जो है छपने लगा वहाँ की न्यूज़पेपर में. And within 3 or 4 days, without any effort, I got publicity in South Africa. अब न्यूज़पेपर वाले तो पता है ना कितना ज़्यादा ही ओवर, ठीक है ना, मीडिया पूरी. अभी आजकल देखो कितना सारा SSR का आ रहा है, ठीक है ना, पूरा दिन यही आता रहता है. तो उसी तरह ही मतलब गांधी जी बड़े फेमस हो गए 2-3 डेज में. तो गांधी जी कोई एफर्ट नहीं किया, विदाउट एनी एफर्ट गांधी जी बिकेम वेरी फेमस बिकॉज ऑफ दिस हिट हेडलाइंस जो डाली न्यूज़पेपर वालों ने अनवेलकम विजिटर की, और उनको पब्लिसिटी मिल गई साउथ अफ्रीका में. Some took my side, some severely criticized me for my rudeness. अब ऐसा ही होता है, कोई भी चीज़ होती है, we have two parties, right? एक जो आपके फेवर में होता है, दूसरा जो आपके ऑपोजिट होता है ना, ऑपोजिशन में होता है. तो कुछ लोगों ने गांधी जी की साइड ली और कुछ लोगों ने गांधी जी को क्रिटिसाइज किया for his rudeness, for not removing the turban. My turban survived almost till the end.
लेकिन गांधी जी ने अपना टर्बन नहीं उतारा. So with this, this story gets over here. Let us move towards the match the columns. Activity 3. Activity 3, first one is quay. What is the meaning of quay? A landing place built along a coastline. Second, literacy. Literacy का मतलब क्या होता है? Possessing the skill of reading and writing. Next comes philosophy. Philosophy means the principles underlying all knowledge. Magistrate. Magistrate का मतलब होता है a low ranking judicial officer. Conflict. Conflict का मतलब क्या होता है? Conflict का मतलब होता है inner struggle. Elegant. Graceful in appearance. Patriotism. The love for one's country. Conservatism. Conservatism. Conservatism का मतलब होता है the tendency to preserve old customs. And last is emancipate. Emancipate का मतलब क्या होता है? Set free, especially legal, social, political restrictions. This is called as emancipate. With this, we finish till activity 3.